مہنگے پیٹرول کے بعد شہریوں کے لیے ایک اور بڑی آزمائش۔ اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی کے ریٹ بے قابو ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کو کھلا چیلنج، دکانداروں نے سرکاری نرخ نامہ ہوا میں اڑا دیا۔ سرکاری قیمت 308 کے برعکس ایل پی جی کی 480 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت۔ ایل پی جی کی قیمت میں روزانہ 10 سے 20 روپے تک کا خود ساختہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ افشاں رضوان ہیں۔ جی افشاں۔ شہر بھر میں ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پہ فروغ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت جو ہے 308 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مختلف جگہوں پہ یہ 480 سے لے کے جو ہے 500 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، اور ایل پی جی دگنے داموں خرید رہے ہیں، جسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ شہریوں سے بات کر لیں گے جو کہ سلنڈر بھروانے آئے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنی بھی دفعہ روزانہ کی بنیاد میں کتنی دفعہ یہ سلنڈر بھروایا جاتا ہے؟ میں تو ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ پہ 450 ہے، کہیں پر 480 ہے، کدھر 500 ہے۔ یہ کلمہ چوک میں 500 کے ریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تو اس کی دیہڑی ہم سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل آپ مجھے بتائیے گا کتنی بھی دفعہ یہ بھروا کے لے کے جا رہے ہیں، گھر کے لیے بھروا رہے ہیں یا رکشے کے؟ میں نے چھوڑ دیا گیس کی وجہ سے رکشہ، کرایہ نہیں پورا ہو رہا، گیس کے پیسے نہیں پورے ہوتے، اس لیے میں نے بند کیا ہوا ہے۔ گھر کے لیے بھی تو سلنڈر ڈلواتے ہوں گے کہ گھر میں گیس آ رہی ہے؟ گھر میں تھوڑی آتی ہے گیس، لیکن گزارا اس سے ہی کرنا پڑتا ہے، اتنی گیس نہیں آتی، روٹی نہیں پک سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ 550 600 تک اس کی قیمت گئی ہے، اور ابھی بھی اس کی قیمت برداشت میں نہیں آ رہی ہے، بجٹ میں نہیں آتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہو رہی ہیں، جہاں گھریلو صارفین گیس ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گیس ہمیں دی جائے جس کی وجہ سے ہم ایل پی جی استعمال نہ کریں، اور رکشہ ڈرائیور سے کہنا ہے ہمارے لیے دیگر چیزیں سستی کی جائیں تاکہ ہم ایل پی جی اگر استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا روزگار پورا ہو سکے۔ بہت شکریہ افشاں۔ لیسکو میں سولر کنیکشنز کے معاہدے کے برعکس بلنگ میراج افسران رکاوٹ بننے لگے ہیں، جبکہ میراج کے اعلیٰ افسران نے بلنگ پر وزارت پاور ڈویژن کے احکامات نظر انداز کر دیے ہیں۔ آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ نے میراج سے بلنگ فارمولہ طے کرنے کے لیے مراسلہ بھجوایا تھا۔ آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ کے دریافت کے باوجود افسران نے بلنگ فارمولے پر کلیئر پالیسی نہیں دی۔ کیا وجوہات اس ڈیلے کی بتائیں گے، ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سولر کنیکشنز کی نیپرا قوانین کے برعکس بلنگ کے معاملے پر میراج کے اعلیٰ افسران رکاوٹ بنتے دکھائی دے رہے ہیں، اور چونکہ وزارت پاور ڈویژن کے احکامات کو ساتھ میں نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ بتایا ہے کہ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 8 فروری تک جمع ہونے والی تمام درخواستوں کو نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت ٹریٹ کیا جائے گا، اور ان کی بلنگ بھی نیٹ میٹرنگ پالیسی کے مطابق کی جائے گی۔ تاہم 8 فروری کے بعد جتنی درخواستیں آئیں گی ان کو نئے فارمولے کے تحت نیٹ بلنگ پالیسی جو ہے اس کے تحت ان کو کنیکشن دیا جا سکے گا۔ لیکن یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ صنعتی صارفین کے بعد اب ہزاروں گھریلو صارفین کے جو کنیکشنز ہیں ان کو نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ پر منتقل کیا گیا ہے۔ کمپنی نے ان کے ساتھ معاہدے نیٹ میٹرنگ کے کیے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی کانٹریکٹس کیے گئے وہ پرانی پالیسی کے مطابق 8 فروری سے قبل کیے گئے، لیکن بعد ازاں جب ان کے ایم سی اوز فیڈ کیے گئے ہیں تو ایم سی اوز کی ڈیٹ کو اٹھا کر ان کی بلنگ کی گئی ہے، اور بلنگ جو کی ہے اس میں ان کو بھاری بھرکم نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میراج کے اعلیٰ افسران بالخصوص اس میں رکاوٹ بنتے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی کی جانب سے ایک مراسلہ میراج کو ارسال کیا گیا اور بلنگ فارمولہ پر ان سے تجاویز طلب کی گئیں، تو میراج کے اعلیٰ افسران نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا اور نہ ہی کوئی واضح پالیسی آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ کو واپس کی ہے۔ اس کی وجہ سے اب صارفین کی بڑی تعداد میراج میں بھی جا رہی ہے اور دیگر دفاتر میں بھی جا رہی ہے، لیکن میراج کے اعلیٰ افسران اس پر کوئی مناسب جواب نہیں دے رہے، اور براہ راست صارفین کو ہر ماہ جو نیٹ میٹرنگ پر جا کر انہوں نے ریلیف لینا تھا اب ان کو لاکھوں روپے اضافی نیٹ بلنگ کی صورت میں ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد سپرا۔ پنجاب میں سماج دشمن سرگرمی کے خلاف نیا قانون تیار، اب آن لائن بلیک میلنگ، سائبر بلنگ اور ڈیجیٹل بھتہ خوری کا خاتمہ ہوگا۔ کسی کا پیچھا کر کے ہراساں کرنا قابل جرم ہے۔ نجی لمحات کی خفیہ ویڈیو یا تصاویر بنانا بھی قانون کے دائرے میں آئے گا۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی علی رامے۔
पंजाब में समाज दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से एक नया कानून तैयार किया गया। इसमें पहले भी एक कानून मौजूद था जो गुंडाइज्म एक्ट था, और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुकूमत ने की हैं और कुछ नई चीज़ें शामिल की गई। और इसमें ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन एक ब्लैकमेलिंग की जाती है उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा सकेगी। भत्ताखोरी जो डिजिटल भत्ताखोरी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी, उसके लिए नई चीज़ें कानून में शामिल की। और साथ पहली दफ़ा ये भी शामिल किया है कि किसी का मुसलसल ताक़ुब जो करना है, अगर कोई फ़र्द किसी का ताक़ुब करता है, किसी ख़वातीन का ताक़ुब करता है तो उसको हरासानी के ज़ुमरे में लाया जाएगा और उसके तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी। और साथ ही किसी फ़र्द के निजी लम्हात की वीडियो रिकॉर्ड करना, खुफिया कैमरा से रिकॉर्डिंग करना, वो भी कानूनी ज़ुमरे में आएगा। और इसके लिए जो पंजाब हुकूमत है उसने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं उनके हवाले से ये एक सोशल बिहेवियर एक्ट तैयार किया है 2026 का। इसकी कानूनी सतह पर मंजूरी जो है वो हो चुकी है और इसमें जो चीज़ें शामिल किए गए हैं कि नए कानून के ज़रिए जो 66 साल पुराना एक कानून था उसमें नई डिजिटल दौर के तहत इसमें नई अमेंडमेंट जो है वो हुकूमत ने की हैं। पुराना कानून जो था वो रवायती गुंडाइज़म तक महदूद था। नए कानून में ऑनलाइन और जदीद समाज दुश्मन सरगर्मियाँ जो है वो शामिल की गई हैं और इसमें स्टॉकिंग, वेरिज्म और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग और डिजिटल एक्सटॉर्शन जो है उसको भी कानूनी दायराकार में जो है वो लाया जा सकेगा। इस नए कानून के तहत आदि मुजरम या समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ज़िली सतह पर कार्रवाई जो है वो की जा सकेगी। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी तश्कील होगी और किसी शख्स को हैबिचुअल ऑफेंडर करार देने की सिफारिशात जो है वो कर सकेगी। और इसमें बैंकिंग जो आदि मुजरम होगा उसके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, असला लाइसेंस मनसूख करने और निगरानी जैसे इक़दाम जो है वो भी कानून में शामिल किए गए। जायदाद की ज़ब्ती या अटैचमेंट की अदालती इजाज़त जो है वो मशरूत की गई है और कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपील और दफ़ा का हक़ भी इसमें शामिल किया गया है। और अपीलों के लिए रिटायर्ड जो डिस्ट्रिक्ट जज और अरकान हैं, उन अरकान पर मुश्तमिल जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो बनाने की इसमें तजवीज़ दी गई है। तो ये बिल्कुल एक नई तरमीम के साथ ये कानून जो है वो तैयार किया गया है जो कि हैबिचुअल बिहेवियर एक्ट जो है उसके तहत, और इसमें जो समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये महकमा कानून की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर ये बनाया गया और उसमें वज़ीर पंजाब की ख़ास तौर पर हदायत थी कि जो कानून एक मौजूद है उसको मज़ीद जो आजकल लोगों को परेशानी का सामना है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो बुलिंग की जा रही है, उसके ऊपर ये चीज़ें शामिल करके आदि मुजरमों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। बहुत शुक्रिया अली राम। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ इदारों को खातिर ख्वाह रेवेन्यू इकट्ठा करने का टास्क पंजाब हुकूमत ने अरब इकट्ठा करने का गैर यकीनी हदफ दे दिया। हुकूमत ने LDA सिटी प्रोजेक्ट को मार्केट करके रेवेन्यू इकट्ठा करने का टास्क दिया। LDA सिटी को रियल स्टेट मार्केट में मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट बनाने के लिए हुक्काम ने सर जोड़ लिए हैं। मजीद इस पर बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे महकमों को अब जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो सेट करके दे दिए हैं। इस हवाले से अगर LDA की बात की जाए तो सिर्फ LDA को 100 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है। अब रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे करना है, ये LDA हुकाम का सोचना है। LDA हुकाम के पास सिर्फ एक ही मनसूबा है, LDA सिटी, जिस पर हुकूमत इस चीज़ पर जोर दे रही है कि इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इसको इतने अरसे से डंप किया हुआ है, इस पर काम नहीं किया जा रहा, डेवलपमेंट नहीं की जा रही, बिजली के मामलात हैं, अंडरग्राउंड जो बिजली की तनसीबात है वो होना बाकी हैं। और अगर इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाता तो आज ये 100 अरब इकट्ठा करना मुश्किल नहीं हो सकता था। अब भी उसके अंदर बहुत सारा कुशन है, काम होना बाकी है। कमर्शियल प्लॉटों को भी बेचने के लिए LDA हुकाम को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा। रियल एस्टेट की मार्केट की जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस है वो एक तरफ, लेकिन अब LDA हुकाम इस चीज़ को सीरियसली सोच रहे हैं कि LDA सिटी में किस तरह रेवेन्यू का कुशन बनाया जाए, अरबों रुपया इकट्ठा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी पॉकेट है जिनको कमर्शियल और अच्छे जो कंसोर्शियम की बुनियादों पर निकाल के बेचना चाहिए मार्केट में, और किन किन बड़ी बड़ी लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि वो इस तरफ आएँ और इन्वेस्ट करें। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पे LDA को काम करना होगा। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अब LDA को हर सूरत इस नए माली साल में जो आने वाला है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा होगा, उसके अंदर जो बहुत बड़ा हदफ दिया है वो 100 अरब का है, जो कि LDA के लिए तकरीबन इन हालात में नामुमकिन तस्वर किया जा रहा है। शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। माली साल 2025-26 के इख्तिताम में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी हैं। FBR ने महसूलात के आदाब हासिल करने के लिए खुसूसी इकदाम तेज़ कर दिए हैं। तमाम चीफ कमिश्नर्स, फील्ड फॉर्मेशंस, टैक्स दफातर के सरबराहान को मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, माली साल 2025 से 26 ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी जो महसूलात के हवाले से अहदाफ हैं वो हासिल करने के लिए न सिर्फ जो इक़दाम हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं, बल्कि इसके अलावा जो तमाम टैक्स दफातर हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और इसके अलावा लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस और इसके अलावा जो दीगर हैं उनके सरबराहान जो कि चीफ कमिश्नर्स हैं उन्हें बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई है, जबकि इसके साथ साथ जो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर हदायत की गई हैं कि जो टैक्स की वसूली है वो ना सिर्फ बर वक्त की जाए, बल्कि इसके अलावा जो ऑफिस के अंदर अमला और इसके अलावा जो अफसरान और सरबराहान हैं वो बजाते खुद भी मुतहरिक रहेंगे। जबकि इस हवाले से बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई है कि टैक्स वसूलियों में बेहतरी, इसके अलावा जो महसूलात हैं उसके अहदाफ मुकम्मल करने के लिए जो कारकर्दगी है उसका ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाए, बल्कि इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर जो इकट्ठा होने वाला रेवेन्यू है उसका भी बाकायदा तौर पर जो है वे रिकॉर्ड के हवाले से FBR हेडक्वार्टर को भी इतला दी जाए। जबकि इसी के पेश नज़र FBR को माली साल 2025 से 26 के लिए जो अहदाफ था इब्तदाई तौर पर वो 14 खरब 13 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, जिसके पेश नज़र IMF के साथ तयशुदा जो मालियाती फ्रेमवर्क था उसके तहत FBR को जो अहदाफ था बादज़ा वो कम करके 13 खरब जो 98 अरब रुपए है वो रखा गया था, जिसके पेश नज़र FBR को इब्तदाई तौर पर रेवेन्यू इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था और जो हर माह महसूलात इकट्ठे करने के हवाले से टारगेट मुख्तस किया गया था वो भी जो है उस हवाले से भी जो मुतअद्दिद चैलेंजेस थे उसका सामना रहा। जबकि अब इब्तदाई दिनों से लेकर अब इख्तितामी दिनों तक जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करने के लिए न सिर्फ जो सरबराहान हैं उनको बाकायदा तौर पर हदायत की गई हैं, बल्कि इसके अलावा जो दीगर मातहत उनके अफसरान हैं उनको भी पाबंद बनाया गया है कि ना सिर्फ वो ऑफिस में मौजूद रहें बल्कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए भी मुतहरिक रहें। जबकि ये भी बताया गया है कि FBR ने तमाम मुतल्लिका जो दफातर हैं उनके टैक्स दहिंदगान से वाजिबात की बर वक्त वसूली यकीनी बनाने के लिए भी जो हदायत हैं वो जारी की गई। शुक्रिया कलीम। महकमा एक्साइज की गाड़ी रजिस्ट्रेशन की ओपन पॉलिसी ट्रैफिक पुलिस के लिए दर्द सर बन चुकी है। शहर में एक एक शहरी के नाम पर सैकड़ों गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हो रहा है। ई चालान की वसूली में शदीद मुश्किलात सामने आने लगी। दौरान चेकिंग 3 गाड़ियां मालिकान के नाम गैर मुतवक्के तौर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है। मरासला जारी किया गया जिसमें लिखा गया है कि M जमशेद नामी शहरी के नाम पर 1743 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही। बिल्कुल, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की ओपन पॉलिसी के हवाले से पंजाब पुलिस इंतहाई परेशान नज़र आती है। सेफ सिटीज़ की जानब से जो कैमरों से ई चालान किए जाते हैं इसकी वसूली के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानब से खसूसी कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें गाड़ियां चेक की गई। तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि एक एक शहरी के नाम पर सैकड़ों गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। जो सबसे ज़्यादा गाड़ियां पॉइंट आउट हुई वो 1700 से ज़ायद एक शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसके ज़िम्मे 28 लाख से ज़ायद के ई चालान वाजिबुल अदा हैं। जबकि दूसरी जो नंबर पर आया वो बाज मोहम्मद था, 421 गाड़ियां उसके नाम पर रजिस्टर्ड थीं और 15 लाख से ज़ायद के ई चालान उसके ज़िम्मे थे। तीसरी गाड़ी जो थी उस शहरी के ज़िम्मे 69 गाड़ियाँ उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, जबकि 4 लाख से ज़ायद ई चालान उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से DG एक्साइज़ को मरासला बुझाया गया है और दरख्वास्त की गई है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पॉलिसी वज़ा की जाए कि किसी एक शहरी के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनीज़, बैंक्स और दीगर लीजिंग कंपनीज के हवाले से अलहदा से तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इसी तरह ऐसे शहरी जिनके ज़िम्मे बड़े पैमाने पर ई चालान वाजिबुल अदा हैं या दीगर सरकारी जो टैक्सेस हैं वो वाजिबुल अदा हैं तो उनकी नई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं की जाए। ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज़ का डाटा जो है वो रियल टाइम होना चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए ताकि ऐसे अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्त में लाया जा सके। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानब से DG एक्साइज़ को मरासला भिजवाया गया है कि इस पर एक पॉलिसी वज़ा की जाए ताकि आइंदा कोई एक शहरी जो इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवा रहा है उसका एहतसाब हो सके, चाहे जो रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रांसफर। शुक्रिया अली साही। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर मांगा है। हेलीकॉप्टर लाहौर में जुलूसों की फिजाई निगरानी करेगा। महकमा दाखिला ने हेलीकॉप्टर मांगने का मुरासला विफाक को भेज दिया है। क्या मतन है, जान लेते हैं डीजी ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम और आराम के छोटी इंतजामात के लिए एक अदद हेलीकॉप्टर मांगा है। ये हेलीकॉप्टर जो है लाहौर में जो है
फजाई निगरानी करेगा और मुहर्रम के जुलूसों की चेकअप करेगा और मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी ड्यूटी देगा और मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है वो पुलिस अफसरान, कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान जो है और वो आला अफसरान जो है इस हेलीकॉप्टर में बैठे होंगे, जो जुलूसों की, जो मुहर्रम के जुलूस है उनकी फिजाई निगरानी करेंगे और सिक्योरिटी पर नजर रखेंगे, मुश्तबा अफराद पर नजर रखेंगे और किसी नागहानी सूरत में ये हेलीकॉप्टर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कैसे खोकर से अपडेट कर रहे थे। बात कर लेते हैं शहर के मौसम की, जिसमें बेहतरी हुई है, मतलब अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ समरा फातमा है। जी समरा, कैसा मौसम है शहर का? जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो ऊपर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली तो सुबह से ही देखते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज हो रही हैं वैसे वैसे दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 48% तक है। इस वक्त हवाओं की रफ्तार बहुत ही कम है, 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सायादार जगह पर हवाएं चलती हैं तो मौसम कुछ बेहतर महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बाहर हब्स भी है और गर्मी भी महसूस की जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की जा रही है कि शाम के औकात में जिस तरह से कल हमने देखा कि बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली तो मौसम बेहतर महसूस किया गया, तो आज भी ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी शहर में 30 से 50% तक बारिश का इम्कान मौजूद है। तो महकमा मौसमियात की उम्मीद जाहिर कर रहा है कि आज भी शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलेंगी और बारिश से मौसम में और दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर बेहतरी देखने में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया समरा। तारीख में पहली बार प्राइमरी जमात में तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निसाब पढ़ेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, पंजाब के प्राइमरी स्कूलों में ज़ेर तरीम लाखों तलबा जो कि प्राइमरी में दाखिल हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं वो पढ़ सकेंगे और इस हवाले से तजवीज़ दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट आइंदा तालीमी साल 2027-28 से बाकायदा तौर पर जो है वो निसाब में शामिल कर लिया जाए और इसको बतौर सब्जेक्ट जो है वो शामिल किया जाएगा। और प्राइमरी के बच्चे जो कि पहली जमात से 5वीं जमात तक हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग पीरियड के तौर पर पढ़ेंगे और उनको उसका मजमून का पेपर भी जो है वो देना पड़ेगा और वो बाकी मज़ामीन की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मजमून को पास करना भी लाजमी होगा और वही तलबा अगली क्लास में प्रमोट होंगे जो कि इस सब्जेक्ट को पास करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से महकमा तालीम ने बाकायदा तौर पर जो पैक्टा का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आज इजलास होना है उसमें बाकायदा तौर पर इस सब्जेक्ट की मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद इसको निसाब को जो है वो छपाई के लिए पब्लिशर्स को भिजवा दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर CM से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी और इसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चों की जहानत में इजाफा होगा और इस हवाले से आज उम्मीद है कि इसकी मंजूरी जो है बाकायदा तौर पर पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के